अगर म्यूजिशियन कैरी करते अपना जो भी मैजिक करने के इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो बोलने का या कहीं खो जाने का ऑप्शन है, मतलब मार्जिन है, खो भी सकते हैं। लेकिन जो इंसान का मन है वो कहीं खो जाता है, ऐसा है क्या ऑप्शन? मतलब आई हैव नो माइंड, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मन नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, करने का दिल नहीं है, मन नहीं है, पर ये मतलब जो ब्रेन है उसमें से तो थिंकिंग पावर टोटली आप अलग कर सकते हैं क्या? जैसे अगर किसी को पेन होता है गाल ब्लैडर में, तो वो गाल ब्लैडर सर्जरी करके उसको टोटली रिमूव किया जाता है ना? तो इज इट पॉसिबल टू रिमूव टोटली द सेटल ऑर्गन ऑफ द सोल और सेटल थिंग एंड सेटल एनर्जी ऑफ द ह्यूमन बीइंग? वो अलग कर सकते क्या? नहीं कर सकते। बिगाड़ना, सुधारना, माइंडफुल रहना, माइंडलेस रहना, वो सब हो सकता है, पर यू कांट सेपरेट दैट सेटल ऑर्गन ऑफ द लाइफ फ्रॉम आवर लाइफ। इंग्रेडिएंट हमारा क्या है? हाँ, हमारे विचार के बिना हम अपने जीवन में कोई भी प्राप्ति कर नहीं सकते। अगर समझ लीजिए, विचार, थॉट्स आर द इंग्रेडिएंट। अगर मैं मतलब समझ लीजिए ज्वारी का आटा लिया और मैं चाह रही हूँ गेहूं की रोटी, या मैं निकाल रही हूँ थॉट्स में पानी और चाह रही हूँ दूध मिले, जो इंग्रेडिएंट रहेगा वही आउटपुट रहेगा ना। जो आप इंग्रेडिएंट डालते हो उसका आउटपुट। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान मैं सोचता कुछ भी हूँ पर मुझे फल ये चाहिए, मैं जो सोच रही हूँ वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि हम इतना थॉट को इफेक्ट डिफेक्ट के मैजिक बॉक्स को ऐसा छोड़ दिया कीचड़ डब्बे में और सोचते हैं हम। हाँ, Greetings, good evening, Om Shanti. I welcome all of you who have taken time this Sunday evening to attend this refreshing Sunday evening talk. So, few of them. So, for the benefit of the first time visitors, I would like to give a brief introduction about the Brahma Kumaris organization. So, Brahma Kumaris, it is a social spiritual international organization which aimed at self transformation through Raj Yoga meditation. So the goal of Brahma Kumaris is to bring the world transformation and the renewal through self-transformation. This organization, it was founded back in 1937, headquartered at Mount Abu, Rajasthan, and spread across 138 plus countries with more than 4,000 plus centers and millions of people practicing Raj Yoga meditation every day. And the place where you are sitting right now, it is called as Shanti Sarovar, the Academy for the Better World, and this is the largest retreat center in the South India. So here you will see many workshops, seminar, conferences, residential retreats. Yesterday only we did one of the conference on scientist engineers wing, so that was also there, and multiple meditation camps and activities related to various wings like IT wing, IT retreats, we have business wings, education wing, research wing. These are conducted regularly, and the regular feature of the Shanti Sarovar is Sunday evening talk, and these topics are mostly related to stress management, anger management, time management, and which spans across various speakers nationally and internationally. So what's the today's topic? Magic of meditation. Yes. So how many of you know what is the meaning of word meditation? Okay, you know the meaning of meditation. So in Hindi we say it dhyan. Yes. So just a breakup of the meditation, that medit and ation. So medit and ation, it's a two word which comes from the Latin word meditare, to think, to contemplate. And ation is the process. So since today you are all here, definitely want to learn what's the magic of meditation, and if we have to teach meditation to somebody, how can we teach meditation? Somebody who has experienced it by themselves, yes?
That then only I can tell what is the magic. Yes, concentration. Yes. So for this, we have a very experienced senior Raj Yoga teacher, BK Shakti Didi here. So with a huge round of applause, I will welcome BK Shakti Didi. And BK Shakti Didi, since childhood, she is in the Gyan, and she is the senior Raj Yoga teacher, motivational speaker, spiritual guide for more than 35 years plus experience in spirituality and meditation. And she has dedicated her life to the God nearly about 30 plus years, and she is here in Hyderabad since 1996. And she has conducted multiple workshops related to self-management, positive thinking, personality development, and many value education courses in JMRVF. And she is also Hyderabad coordinator of Administrators Service Wing of Brahma Kumaris, and also the coordinator of Shamshabad branch of Brahma Kumaris. So again, with a huge round of applause, we will welcome BK Shakti Didi. Over to you, sister. Thank you, Nidhi Ben. Om Shanti. Om Shanti. And Om Shanti. तो आज का जो सब्जेक्ट है मैजिक ऑफ मेडिटेशन. तो जब 3 बार ओम शांति किए ना, जैसे कभी भी कोई भी होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो क्या करते हैं, 1 2 3 देन स्टार्ट होता है ना. तो यहाँ पर जो ओम शांति 3 बार हम कहते हैं, वो कैसे हम मेडिटेशन में रेगुलर प्रैक्टिस में मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए करेंगे, वो लास्ट में आपको बताया जाएगा. तो फर्स्ट, व्हाट इज़ द मैजिक मेडिटेशन? सिस्टर टोल्ड दैट. ओके, सो व्हाट इज़ मेडिटेशन is clear. All of you are clear, or you need clarity more about meditation? Meditation ध्यानमु स्पष्टता है, क्लियर है, क्लैरिटी है, या चाहिए रहेगा? चाहिए, मेडिटेशन की स्पष्टता चाहिए. ओके, मैजिक, हम बचपन में मैजिक देखते थे है ना. हाँ, मैजिक में होता क्या है? मैजिक में हम बहुत छोटे थे तो हम लोग सोचते थे सचमुच में भी जो नहीं है वो चीज़ आ जाता है. लेकिन अभी क्या लगता है, ऐसा होता है क्या? जो है नहीं तो म्यूजिशियन करीब क्यों होते है ना. तो मैजिक माना क्या है? हम लोग जो मैजिक में देखते हैं, खुश होते हैं, तो आप कुछ लगाओगे नहीं और पाओगे बहुत कुछ. मैजिक इज लाइक दैट ओनली, और समथिंग एल्स? हाँ, लगाएंगे कम, पाएंगे ज़्यादा. उसे और सहज शब्द कहा जाए तो मेहनत के बिना प्राप्ति, या कम मेहनत, विदाउट एडिंग समथिंग यू कांट गेट सम अदर थिंग. मतलब थोड़ा लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पाते हैं, है ना. जैसे उसमें वो ऐसा ऐसा दिखाता है कुछ नहीं, फिर नीचे से पेपर, लेकिन एक बॉक्स तो रहेगा ना, मैजिक बॉक्स तो रहेगा. तो इन ह्यूमन लाइफ देर इज अ मैजिक बॉक्स. सो व्हाट इज दैट मैजिक बॉक्स? एवरी इंडिविजुअल हैड द ट्रेजर. इवन फाइनेंशियली somebody में रिच, somebody में poor. Physically also somebody may very healthy and somebody have some little issues of health. Okay, but this treasure box is God given equally to every individual. What is a treasure box? Think. जी, समय सही है. और जी, किसी ने एक सही उत्तर दिया था, सोल क्वालिटी. ओके, और मैजिक बॉक्स. अभी चलो, आपके हाथ में मोबाइल होता है. पहले ज़माने में तो कहीं जाना होता है तो मैप, मतलब लोगों को पूछ के पता करके जाना होता था. और आपके हाथ में भी मोबाइल है तो कहीं पर भी सर्च करो और मंजिल पहुंच जाओ, है ना. तो वो इन्वेंट किसने किया? ऊपर से टपका क्या? हाँ जी, हाँ. कैसे बनाया? हाँ, तो
मतलब आज जैसे आज हमारा कॉन्फ्रेंस था, यस्टरडे साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग का रहा, और आज और एक जगह पर कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत, इस टॉपिक पर एडमिनिस्ट्रेटर्स का कॉन्फ्रेंस रहा। तो उसमें ये बात पर थोड़ा चर्चा भी हुआ था। तो कर्म योगा है ना, तो मैजिक कैसे हम जीवन में प्राप्त करें, मैजिक बॉक्स जो हम सबको इक्वली दिया गया है, वो मैजिक बॉक्स क्या है जिसके आधार से एम्पावर हो जाते हैं, मैजिक्स होते हैं सब कुछ, पर वो मैजिक बॉक्स क्या है? और थोड़ा, हाँ वेरी गुड, क्या है? जोर से, क्या है? क्या है? हाँ, अगर कोई म्यूजिशियन अपना म्यूजिशियन बॉक्स खो जाता है तो मैजिक कर सकते हैं? नहीं। चलो, और एक वंडरफुल चीज क्या है, ये आप खोना चाहेंगे ना तो भी नहीं खो सकते, वो आपके साथ ही जुड़ा रहता है। अगर म्यूजिशियन कैरी करते अपना जो भी मैजिक करने के इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो भूलने का या कहीं खो जाने का ऑप्शन है, मतलब मार्जिन है, खो भी सकते हैं। लेकिन जो इंसान का मन है वो कहीं खो जाता है, ऐसा है क्या ऑप्शन? मतलब आई हैव नो माइंड, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मन नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, करने का दिल नहीं है, मन नहीं है, पर ये मतलब जो ब्रेन है उसमें से तो थिंकिंग पावर टोटली आप अलग कर सकते हैं क्या? जैसे अगर किसी को पेन होता है गाल ब्लैडर में, तो वो गाल ब्लैडर सर्जरी करके उसको टोटली रिमूव किया जाता है ना। तो इज इट पॉसिबल टू रिमूव टोटली द सेटल ऑर्गन ऑफ द सोल और सेटल थिंग एंड सेटल एनर्जी ऑफ द ह्यूमन बीइंग? वो अलग कर सकते क्या? नहीं कर सकते। बिगाड़ना, सुधारना, माइंडफुल रहना, माइंडलेस रहना, वो सब हो सकता है, पर यू कांट सेपरेट दैट सेटल ऑर्गन ऑफ द लाइफ फ्रॉम आवर लाइफ। सेटल ऑर्गन ऑफ द लाइफ फ्रॉम आवर लाइफ रिमूव किया जा सकता है? नहीं है। तो भगवान ने देखो, आप उसको मैजिक बॉक्स को खोना चाहते तो भी नहीं खो सकते। इज इट क्लियर? तो आपके पास मैजिक बॉक्स है और वो आप, हाँ, खोने का ऑप्शन भी नहीं है। फिर रिमेनिंग क्या है, करना क्या है? अब मैजिशियन के पास बॉक्स है, हाँ, लेकिन मैजिशियन रेडी भी है, करना किसको है? बॉक्स अपने आप चलेगा तो चलाएंगे कौन? तो वो हम अभी करना है। आपके पास, सबके पास अभी मैजिक बॉक्स है ना। मैजिक बॉक्स क्या है? मन है, पक्का? मैजिक बॉक्स क्या है? ठंडा ठंडा आराम से हाँ, तो मन मैजिक बॉक्स है, जादूगरी डब्बा है ना। तो अभी बॉक्स में हम क्या क्या मिरेकल्स कर सकते हैं, मैजिक क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो वो अभी हम जानेंगे। तो हम जैसे म्यूजिशियन जब भी जो भी शो प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें क्या क्या दिखाते हैं म्यूजिशियन में? ज्यादातर हाँ, हमको बचपन में तो काजल निकाल के देते थे, पैसे निकाल के देते थे। बहुत छोटे थे तो हमारे पास एवरी ईयर एक म्यूजिशियन आता था। तो बच्चों को चीज़ें पसंद करते ना, तो वो चीज़ें निकाल निकाल करके देते थे, ठीक है? तो हमको अपने मन से क्या निकालना है, उसका विधि क्या है? तो जब भी कोई म्यूजिशियन मैजिक करता है तो उसके पीछे एक राज, सीक्रेट रहता है। सीक्रेट मतलब वो चीज़ तो उनको परचेज ही करना पड़ता है, वो यूं ही कोई चीज़ निकलता नहीं है। निकलता है क्या ऐसा? नहीं, वो रखते हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आया, ठीक है? तो वो विधि मेडिटेशन है कि हम सबके पास बहुत कुछ प्राप्त करने का एनर्जी है, बहुत कुछ प्राप्त करने का है हमारे पास, लेकिन उसको हम कार्य में
लाना। जैसे वो मैजिक में दिखाई नहीं देता है तो सडनली दिखाते हैं तो मैजिक लगता है ना। तो हमारे अंदर जो प्राप्तियों का ट्रेजर है, हम जब हमारे थॉट्स में इमर्ज करते हैं तो उसका फॉर्म होता है प्रैक्टिकली। इज इट क्लियर? जैसे म्यूजिशियन के पास वो चीज है, लेकिन वो कब निकाल सकता है? व्हेन ही अडॉप्ट द प्रैक्टिस प्रोसेस। अगर समझ लीजिए आपके पास चावल है या आटा है, आटा रोटी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सो यू हैव टू टेक द फ्लो, उसके बाद फिर वाटर एंड यू हैव टू मिक्स वेल एंड देन यू कैन एबल टू प्रिपेयर चपाती। प्रोसेस। तो वो आटा निकाला, रोटी निकाला, प्रोसेस गुप्त रखते। ठीक है? तो हमारे विचार है इंग्रेडिएंट, थॉट्स आर द इंग्रेडिएंट एंड अटेनमेंट्स आर द रिजल्ट। जैसे आटा रोटी, इंग्रेडिएंट हमारा क्या है? हाँ, हमारे विचार के बिना हम अपने जीवन में कोई भी प्राप्ति कर नहीं सकते। अगर समझ लीजिए विचार, थॉट्स आर द इंग्रेडिएंट। अगर मैं मतलब समझ लीजिए ज्वारी का आटा लिया और मैं चाह रही हूं गेहूं की रोटी, या मैं निकाल रही हूं थॉट्स में पानी और चाह रहे हूं दूध मिले, जो इंग्रेडिएंट रहेगा वही आउटपुट रहेगा ना। जो आप इंग्रेडिएंट डालते हैं उसका आउटपुट। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान मैं सोचता कुछ भी हूं पर मुझे फल ये चाहिए, मैं जो सोच रही हूं वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि हम इतना थॉट को इफेक्ट डिफेक्ट के मैजिक बॉक्स को ऐसा छोड़ दिया कीचड़ डब्बे में और सोचते हैं हम। हाँ, मतलब मैं अपना मैजिक बॉक्स को कचरे कूड़े के डब्बे में डाल दूंगी, परंतु मुझे चाहिए सोने हीरे, तो मिलेगा। तो अभी आपका मैजिक बॉक्स को कहाँ रखना है? अपने पास। अच्छी कहावत है, सोने के बर्तन में ही शेरनी का दूध ठहरता है। मतलब उतना वो कहावत है, इतना वो पावरफुल मिल्क होता है वो। अगर समझ लीजिए कोई भी हीरा भी है, उसको प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? या तो लाल पेपर या पिंक पेपर, या बॉक्स भी सुंदर, फिर उसको है ना, वो सालारजंग म्यूजियम में कभी कभी निजाम की ज्वेलरी मतलब वो आजकल इतना आर्टिफिशियल शाइनिंग है, वो ओरिजिनल हीरा समझ में नहीं आता। उसका जो प्रेजेंटेशन देख के हाँ ये ओरिजिनल हीरा है समझना। आजकल आर्टिफिशियल चमक इतना ज़्यादा है ना, तो ओरिजिनल क्या है डुप्लीकेट क्या है समझ में ही नहीं आएगा। हम लोग गए थे बहुत, मैं 96 में जब हम आए, 1-2 साल के बाद ही वो निजाम की ज्वेलरी का एक एग्जीबिशन लगा था, तो बड़ी दीदी हम सब बहनों को लेके गए। गोल्डन एज में कैसे हीरे जवाहर रहता वो एक बार सैंपल देखेंगे ना। पर हम लोगों को तो हीरे भी पत्थर ही समझ आते, कुछ समझ में तो आता नहीं, हम ज्वेलरी पहनते नहीं है ना। तो अभी हम अपना हीरा जैसे संभाल के रखते हैं, तो वैसा मैजिक बॉक्स को अच्छा सा रखना, मन को अच्छा सा रखना। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में जब से मैं 96 से देख रही हूँ, उसके पहले 90 से जब से मैं जुड़ी हूँ, तब से अनेक आत्माओं को, क्योंकि व्यक्तिगत मेरे पर्सनल लाइफ में, क्योंकि चाइल्डहुड में ही जुड़ गए, तो ऐसा कोई बातें हमारे जीवन में आए नहीं जिसको सामना करने की शक्ति मुझे चाहिए था। ऐसा कुछ बातें है नहीं। पढ़ाई पूरा हुआ और हमारा माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल था, वहाँ पर हाँ जैसे एग्जाम्पल बताती, मतलब मेराकिल कैसे होते। हमको उस समय हैदराबाद में नए नए ब्रांचेस खुले थे और हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था डेडिकेटेड सिस्टर्स के हैदराबाद में, तेलुगु स्पीकिंग हैंड्स।
तो और मेरा इंटरेस्ट था जैसे ही फार्मेसी, क्योंकि 90 में हम जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, उसी समय माउंट आबू में हमारा ब्रह्मा कुमारीज का चैरिटेबल हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल ओपन हुआ। तो मैं जब काउंसलिंग होता है तो उसमें मैं एक्चुअली साइंस मुझे पसंद नहीं था, मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स में जाना था, पर मैं फार्मेसी में इसलिए गई कि मुझे माउंट आबू जाना है, वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल खुला है तो वहाँ जाना है। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स थे कि ये तेलुगु स्पीकिंग हैंड्स चाहिए और वहाँ पर माउंट आबू, मुझे मेरा ऑप्शन था। तो वहाँ पर ऐसा था कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ही, तो मैं मतलब कन्वर्जेशन विथ गॉड इज़ द मेडिटेशन। तो मैं मन ही मन सोची, मैं तो, मेरे को बाय हार्टिंग करना आता नहीं है, पहले समझ करके लिखना आसान है, बाय हार्ट करना, उसमें हमारी एक सब्जेक्ट होती थी फार्माकोग्नोसी, उसमें मोर देन, उस समय ही, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, 230 प्लांट्स होते थे, उसका साइंटिफिक नेम एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्लांट एंड मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ द प्लांट एंड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑन ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऐसा वो सारा बाय हार्ट करना पड़ता था। 230 ड्रग्स होते थे, तो वो सारा कैसे बाय हार्ट करती थी। आई यूज टू इन्वाइट गॉड, यू आर माई फ्रेंड, कम एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी ड्रग साइंटिफिक नेम एंड ऑल दैट। तो इतना अच्छा लगता था। और वो एग्जामिनेशन के पहले मैं ऐसे ओपन करती थी ब्लाइंडली, बाबा को याद करके, फिर वो पढ़ती थी, वही ड्रग उसमें आता था एग्जामिनेशन में। मतलब 230 तो नहीं आएंगे ना, बाकी फोरेंसिक, फार्मेसी, कॉग्निटिव वो सारा थोड़ा लाइट रहता था, पर ये कॉग्निटिव जो थोड़ा टफ था, मतलब पूरा बाय हार्टिंग सब्जेक्ट ही था। तो बच्चों को क्या होता है मिरेकल, पढ़ाई में मदद करें। और हमारे हॉस्टल से उस समय तो ट्रांसपोर्ट भी मीडियम था, तो मैं सोचती थी अभी, मतलब वो टाइम पे बस नहीं होता था, मैं जहाँ से जाकर के हमारा घर वापस आना है, पर इतने बार मुझे अनुभव हुआ कि मेरे को तो अभी ही निकलना है बाबा, आप कैसे, तो वो कोई बस और कहीं जाने का और कुछ काम से हमारे सामने से जाते। इतने सारे ऐसे छोटे छोटे अनुभव, कहीं और जाना होता था, ऑटो कभी उस रूट में आती ही नहीं थी, तो ऑटो आ जाता था हमको, जो चीज़, और इतना वंडरफुल था। मैं प्रैक्टिस करते करते मिरेकल, मतलब मेरे लाइफ में तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें थी। एक बड़ा, मतलब मेरे लिए वो बड़ा है, आप सबके लिए छोटा ही होगा, कि ब्रह्मा कुमारी से आई तो फिर मुझे ये हमारा लक्ष्मी नारायण रहता, तो देवताओं की जब पूजा करते तो लहसुन प्याज कभी भगवान को चढ़ाते नहीं, तो हम कैसे खाना, तो हमारे हॉस्टल एजुकेशन था, तो हॉस्टल में तो लहसुन प्याज डालते हैं। तो मैं माउंट आबू जाके दृढ़ संकल्प के, डिटरमाइंड थॉट, उस समय तक मेरे को चावल कैसे बनाते, सब्जी कैसे बनाते, मतलब चावल को धोने के बाद चढ़ाना होता है, एकदम जीरो, क्योंकि बचपन से हॉस्टल में थे तो घर का काम में थोड़ा बिल्कुल ही टच नहीं था। लेकिन मैंने वहाँ डिटरमाइंड थॉट ले लिया कि आगे मैं खाना हॉस्टल का बना हुआ नहीं खाऊंगी। तो माता जी को इसमें जुड़े हुए थे, तो ना भी नहीं कर पा रही, लेकिन अंदर से लग रहा था ये कैसे बनाओगी। बेटियों पर तो माता जी को बहुत रहता ना, उनको बहुत ज़्यादा अंदर से मैं बोली कुछ टेंशन नहीं करो, बाबा बेटा मेरे को हर चीज़ बनाना सिखाता है, अब निश्चिंत रहो। फिर हॉस्टल में वो रूल नहीं है किसी को सेल्फ कुकिंग का, वो ऑलरेडी वहाँ पर जो किचन का स्टाफ होता है वही बनाते। तो मैं बाबा को बोली, बाबा अगर मेरे को लहसुन प्याज के बिना खाना खिलाना है आपको, आप वो उस दिन उस वार्डन का पता नहीं आज तक उस हॉस्टल में ना पहले था मेरा होने के बाद, ना वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर, मेरे को देख करके कॉपी करते ना लड़कियां, तो ना बाद ना पहले। मैं वापस टीसी लेने जब गई थी तो हॉस्टल में कोई और भी हेल्थ इश्यूज बोल करके रिक्वेस्ट करे, पर किसी को भी स्वीकृति नहीं दिया। और वो हॉस्टल वार्डन ने मुझे कहा आज क्या खाओगे, तो मैंने उनको दिखाया, लेमन राइस लेके गई थी। जो टैमरिन राइस या लेमन राइस होता है वो 1-2 दिन टिकता है, तो आप, मतलब वो इतना आश्चर्य गया, चलो आप मेंटली प्रिपेयर हो, और गैस स्टोव सब लेकर के ही गए कि मतलब वो सबको इतना मिरेकल लगा। मेरा क्लासमेट सब बोलते थे ये कैसे एक्सेप्ट किए तुम्हारा। तो फिर उसके बाद मतलब जीवन में हम अगर सोचते हैं, हमारे पास ना रिसेंटली 1 साल पहले एक लेडी आती थी, उनको उनका बेटा ले आया, वहाँ RCI डिफेंस है ना, RCI एरिया,
उस तरफ रहता है, एयरपोर्ट के उस तरफ। तो वहाँ एक सेशन था, फिर मेरे को वापस आश्रम में ड्रॉप करने उनका बेटा आया। तो मैं बोले आप मेडिटेशन करते हो? दीदी मुझे मेडिटेशन नहीं मालूम, लेकिन मेरे को विश्वास कैसा हुआ, मैं एकदम मतलब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया। तो जो RCA में इंजीनियरिंग के लिए वो जो फॉर्म भरा या अटेंड किया, वो एग्ज़ाम जो लिखा, उसके पहले मैं बिल्कुल अयोग्य, नालायक, लेकिन मेरी मम्मी बोली तुम बाबा को याद करके जाओ, तुम्हारा ये जॉब लग जाएगा। और बाबा के सामने में मैं नहीं बैठ रहा था, हमारे घर में मेडिटेशन कमरा है, तो मम्मी ने मुझे बिठाया और मैं इंटरव्यू देने गया। और मेरे को 1% तो क्या दीदी 0.001% भी यकीन नहीं था मुझे वो जॉब लगेगा, और मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ गया। तो मैं इतना आश्चर्य का ये हुआ कैसे। और मेरा इंटरव्यू भी इतना सेटिस्फैक्शन तो नहीं था, पर मेरे को तो 100% लगता है ये बाबा का मिरेकल है। वो मेडिटेशन नहीं करता, उनकी माँ करती है। तो लेकिन मैं जब इंटरव्यू देने के पहले मम्मी बोली मेडिटेशन कमरे में बैठ करके 2 मिनट अच्छा सा बाबा को ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो फिर जाओ। तो जहाँ हम बोलते ना, जहाँ दवा भी नहीं काम कर सकता है वहाँ भारत में इसलिए मानते बड़ों की दुआएं हमें मिलती है। और एक बोलते भी है, मतलब वो जीवन में मैजिक कैसे होते हैं। पहले ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होते थे ना, वो लोग मानते थे अगर किसी एक की तकदीर में अगर है प्राप्ति, तो सारा परिवार उनकी तकदीर का गाते हैं। एक एग्जाम्पल, रियल इंसिडेंट सुनाती हूँ, रियली हुआ है। एक बस, बहुत पहले ज़माने की वो यात्रा है, तो उसमें जाते हैं तो बार बार वो मंटरो थंडर होता है ना, वो गिरता है ना, हाँ बिजली गिरती है, हाँ, तो वो उनके आसपास चलता रहता। तो फिर सब लोग बोलते बस में किसी का तो भी वो बिजली के साथ मृत्यु का है, तो वो एक उतर जाएगा तो ये बस में सब मतलब आराम से सुरक्षित पहुंच सकते हैं। तो बस को एक जगह रोकते। जनरली बिजली पेड़ पर गिरता है ना, तो पेड़ के थोड़े डिस्टेंस में बस को रोकते, एक एक जाना पेड़ के पास जाके फिर वापस आना। अगर जिसका मृत्यु बिजली से होगा वो जाएंगे तो बाकी का हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो फिर एक एक 40 लोग रहते उस बस में, तो एक पहले जाते डरते डरते, फिर आते, फिर दूसरा भी ऐसे डरते डरते जाता है, से 39 मेंबर्स जाते। फिर सोचते एक जो बचा है उनका ही है, तो वो जाएंगे तो हम सुरक्षित रूप में मंजिल पहुंच सकते। तो वो सोचता अभी मेरा तो गया, वो भी डरते डरते बेचारा पेड़ के नीचे पहुंचता और बिजली गिरती। कहाँ पर? बस पर गिरती। उसकी एक आयु इतनी लंबी थी जो बस वालों को बचा रहा है, उस एक की आयु इतनी स्ट्रांग है जो 39 मेंबर्स की आयु को वो बचा रहा है। जब वो निकल जाता है तो फिर पहले ज़माने में ये जॉइंट फैमिलीज में ये मानते थे अगर घर में एक बच्चे, एक किसी का भी तकदीर होता है तो सारा परिवार सुभिक्षित रह सकते हैं। और हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। चलो 2, 3 या 4 रहते वो भी खुश रहते हैं क्या? ये 1-2 जैसे एग्जाम्पल बताया। और मैजिक मैंने जो आश्रम में हजारों लोगों में परिवर्तन देखा, उसमें 2-4 एग्जाम्पल्स आपको सुनाते। तो जीवन में जो मैजिक, या कहो हमारा जो मैजिक बॉक्स मन है, मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं वो विचारों को सही दिशा बताना मस्ट एंड शुड है, कंपल्सरी है, ऑप्शन नहीं है। जैसे ऑक्सीजन ऑप्शन है या नीड है? ऑक्सीजन के बिना चल सकते हैं, पानी के बिना चल सकते हैं। तो उसके लिए आप बोलते मेरे को टाइम नहीं है, पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा बोलेंगे? मन को सुविचार की दिशा देना ऑप्शन नहीं है, मस्ट एंड शुड है। यू हैव टू गिव ए राइट पाथ
टू थिंक आवर माइंड. सही दिशा हम अपने मन को समझाना या सुनाना, उसके लिए समय देना ऑप्शन नहीं है, नीड है. आप सवेरे सवेरे, जैसे ब्रह्मा कुमारी में जिसको मुरली क्लास कहा जाता है, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, मन को आपके फुल डे में जितनी भी विचारों के बिना तो काम होता ही नहीं है ना. विचारी सीड, थॉट्स आर द सीड्स फॉर द एक्शन. विदाउट थॉट यू कांट डू एनीथिंग. तो मन को अमन करना मेडिटेशन नहीं है, मन को दमन करना मेडिटेशन नहीं है, मन को सुमन. दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैजिक. म्यूजिशियन बनना चाहते कि नहीं? आपके जीवन का म्यूजिशियन बनाएंगे? म्यूजिशियन एक मैं बताऊंगी जैसे कैसे मैजिक होता है. एक घर में, यहाँ ही उस समय में थी, मैं समझती हूँ 2013 या 14 की बात है, या 15 भी होगा, मुझे करेक्टली याद नहीं, बिटवीन 12 to 16 इस बीच में मैं यहाँ पर थी. एक लेडी आए मेडिटेशन प्रैक्टिस की, तो बहुत अच्छा रेगुलर प्रैक्टिस की. मुझे उनके साथ कुछ उनके फैमिली बैकग्राउंड नहीं मालूम, शेयर भी कभी किया नहीं, आती थी जाती थी. और मेरा 6 months के लिए कहीं और ब्रांच में जाना हुआ. उसके बाद मैं कुछ और एक्टिविटी में, जैसे अभी मैं 15 days के लिए, ऐसे ही फिर कुछ दिनों के लिए मैं आई. तब वो आकर के मुझे सुनाई, दीदी मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा मेरे जीवन में हुआ. तो क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, हमारे घर में एक ही बेटा है और भगवान ने इतना खूब दिया है, पैसे की कोई कमी नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है. एक ही बेटा है, उनको 2 बेटा बेटी है और डाइवर्स हो गया. तो हम वो सेकंड मैरिज भी नहीं करना चाहते, और वो बच्चों को मिलने के लिए कोर्ट वो सब में मिलने का एक दिन देते ना, वीकली वंस और 15 days वन मीटिंग पॉइंट, बच्चों के साथ आके मिल के जाओ. से डाइवर्स हो गए, बच्चे बहू के पास है और वो दुखी है, एक ही बेटा है और हम घर में देख नहीं पाते थे. मेरा मन बहुत डिस्टर्ब होता था और बीमार भी पड़ गई, कैंसर भी फर्स्ट स्टेज में आ गया. फिर मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करी, कैंसर भी ठीक हो गया. और फिर हम लोग मीटिंग पॉइंट, पहले तो उनका भी एक होटल है, वहाँ पर एक्सेप्ट किया. पहले तो वहाँ मीटिंग के लिए भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, फिर बाद में वो वापस घर आ गए. ताली तो बजाओ भाई. जो ताली नहीं बजाए उनको समझ में आया कि हम क्या कह रहे थे? या हिंदी तेलुगुलो చెప్పమంటారా? हिंदी में ही तो कह रहे, सुनाई समझ में आया सभी को? हाँ जी. किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कोई है? मतलब आजकल जो ह्यूमन रिलेशंस में इतना गैप है, उसमें होता कुछ भी नहीं, लेकिन हम ना आपस में अगर को थोड़ा भी कुछ होता है, उसको हम अपने मन रूपी मैजिक बॉक्स में डाल देते. बात होता कुछ भी नहीं, लेकिन वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव मैजिक हो जाता है. जैसे बात कुछ भी नहीं है, डाइवर्स तक हो गया, क्योंकि नेगेटिव बढ़ जाता है. अरे कुछ कहा नहीं है, वो इतना क्यों बिगड़ गया? बिगड़ने में मैजिक, क्योंकि बॉक्स में हम लोग पॉजिटिव नहीं डाल रहे ना. मैजिक में क्या होता है, जो आप डालते वो अनेक गुना हो जाता है ना. तो अभी हम मन में क्या डालना है, तो वो एकदम अपने मन को जैसे जैसे न्यूट्रल, काम, नेगेटिव फ्री ना, सवेरे सवेरे डिस्कोर्स मुरली जिसको कहते हैं, वो सुनते हैं ऑटोमेटिक. उन्होंने कहा हम कभी उनको, वो ठीक हो के घर आएंगी. मैं मेडिटेशन में भी भगवान के सामने ऐसा कुछ बात रखी नहीं, लेकिन मैं मेडिटेशन करती रही और अपने आप वो ठीक. దో हमारा आप शब्द सुने होंगे, తెలుగులో అంటారు రుణం తీర్చుకోవడానికి కడుపులో పుడతా, ऋण चुकाने के लिए जन्म लेंगे. ऐसे अगर बेटा भी बहुत सेवा करते तो उनके घर में माता पिता बोलते ना, ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे घर में आएंगे. तो ये हमारा जो भी हम जिनके साथ भी है, वो ऑफिस में भी, वर्क प्लेस में भी होगा, फैमिली में भी होगा, नाइबर्स में भी होंगे, मोहल्ले में भी होंगे, स्ट्रीट में भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
तो हमारा कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होता है हमारे गुड विशेस से। लेकिन हम अपने मन को पहले बिगाड़ के रखे हुए होते हैं। तो हम अपने विचारों को, ये आप पक्का कर लो, अपना मैजिक बॉक्स क्लीन, क्लियर, गुड कंडीशन में रहना। बिगड़ा हुआ मैजिक बॉक्स से तो कुछ मैजिक नहीं होगा। वो निकालना चाहते कुछ और निकलता कुछ और। बिगड़ जाता है तो ऐसे ही होता है ना, दिखा ही नहीं सकते। गलती से अगर छूट भी जाता है, वो मैजिक की टेक्निक में अगर कई चाबी होते हैं वो छूट भी जाता है तो जान ही चला जाता है। ऐसे ही है हमारा जो मन रूपी मैजिक बॉक्स है, हम क्या डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, कब तक डालना है, वो सब चीज़ें सही रूप में करेंगे तो जीवन में अद्भुत ही अद्भुत होंगे। लेकिन हम पाना कुछ और चाहते हैं और विधि कुछ, हाँ, तो क्या होगा? दुखी हो जाएंगे। मैं जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई थी, वहाँ पर उस ब्रांच में एक बहन और भाई दो आते थे, अभी भी है, वो दोनों मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड ही है। करीमनगर से हैं। तो हम भी जाते थे, फर्स्ट रो में बैठते थे, मेडिटेशन क्लास अटेंड करके वापस जाते थे। छुट्टियों में ही मैं देखती थी, बाकी के दिन तो हॉस्टल में थे। तो लोग उस समय बहुत छोटे थे, अच्छा सा पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स नहीं आते थे, बच्चे आते थे। माँ थोड़ा कनेक्टेड थी लेकिन बहुत लेस, पर उन दोनों को, भाई बहन को बहुत मेडिटेशन में सुप्रीम, मतलब जो भी हमारा मेडिटेशन एग्जीबिशंस होते थे वो दो बच्चे आके एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा समझे हुए थे और 6th स्टैंडर्ड से ही समझाना शुरू कर दिए थे यहाँ पर क्या समझाया जाता है। तो लोगों को भी अट्रैक्ट होता था, इतने छोटे बच्चे कैसे समझा रहे हैं। और उनके पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास है, तो उनका पिताजी शराब भी पीते थे, तो मतलब फाइनेंशियली ये लोग कुछ पढ़ा सके वो ऐसा नहीं था माहौल। तो दोनों ही इंटेलिजेंट थे, बच्चे अच्छे थे, और वो लोग कभी सोचे नहीं, लेकिन बाबा को याद करते थे, पढ़ते थे, अच्छा ही पास होते थे। 2007 में एमसेट लिखा, वो फर्स्ट तो फ्री सीट नहीं मिला उनको, तो पैसे लगा के डॉक्टर बनने का मतलब अपना कल्पना भी कर सकते हैं। तो 2007 में वो एमसेट में सेकंड टाइम लिखा, कोचिंग कुछ नहीं, कोचिंग का पैसा लगाने जैसा उनका परिस्थिति नहीं, विदाउट कोचिंग वो पढ़ करके फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री सीट नहीं आया, पेमेंट सीट आया था, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुआ क्योंकि पेमेंट करने का उसका मार्जिन नहीं था। तो सेकंड टाइम में एमसेट में स्टेट फर्स्ट रैंक आया। एक्सरसाइज होता है आपको, मैं उनके लिए चलो ताली बजाओ, नहीं बजाओ, अपने लिए तो बजाओ। तो स्टेट फर्स्ट रैंक आया और उस्मान यूनिवर्सिटी में फ्री सीट मिला। उसके बाद मैं परसों कुछ दिन पहले पूछी तो मैं बोली वो जुड़ा हुआ है कि नहीं है, फिर वो बोले MBBS के बाद तो कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है ना। तो पूरा उनका स्टाइफंड से ही उनकी पढ़ाई चली, क्योंकि फाइनेंशियली तो वो कुछ है नहीं। लेकिन दोनों देखो, माँ उनकी पेरेंट्स के लिए मैजिक क्या है, वो पेरेंट्स तो कुछ लोअर मिडिल क्लास है, घर भी नहीं, कुछ नहीं। अभी उनका बेटी भी IRCT में साइंटिस्ट के रूप में कुछ समय रही, उसके बाद उनको गवर्नमेंट BEd करने के बाद डिग्री कॉलेज लेक्चरर पोस्ट मिला, तो बेटी जो है लेक्चरर बनी और ये जो है डॉक्टर बना, रेडियोलॉजिस्ट पूरा किया उसके बाद। तो अभी भी दोनों मेडिटेशन से जुड़े। पेरेंट्स के लिए मिराकिल क्या, घर बना के दिए दोनों मिलकर के, भाई बहन और गाड़ी खरीद के दिए। पेरेंट्स के लिए इतना केयरिंग कंसर्न वो लोग कुछ नहीं किए, लेकिन आजकल देखो और एक परिवार में देखी मैं, वो लोग इतना जैसे बोलते हैं ना, पेट कितना खाता है और घर रहने को चाहिए, तो वो विला मांगा तो विला बनाया और सब कुछ किया, लेकिन वो रोज पेरेंट्स को टॉन्टिंग करता, तुमने रिश्वत लेकर के, पुलिस डिपार्टमेंट में है वो भाई, हाई पोस्ट में था, तुम रिश्वत लेके बहुत बहुत कमाना था।
और अभी उनका बेटा थोड़ा डिप्रेशन में है बेचारा, वो बिल्कुल रिश्वत नहीं लेता, एंटी करप्शन ब्यूरो में करते थे, एकदम सिंसियर ऑफिसर, एकदम माने एकदम सिंसियर। तो फिर वो माता जी आकर के मेरे को कहती है मेरा बेटा ऐसा कहता है। तो मैं बोली वो कुछ भी कहे, आप इतना दिए, क्योंकि उनको ही अभी मंथली 40,000 हाथ में आता है, अगर उन्होंने जॉब भी नहीं करे तो रेंट्स वगैरह, तो उससे ज़्यादा कौन सी पेरेंट्स करके देते। तो मैंने उनको एक दिन समझाया, उनको बेटे को ही बुला करके प्यार से समझाया, नहीं तो दोनों को इतना टार्चर करता, इतना टार्चर करता, माँ पागल हो जाती कि तुम लोग ये नहीं करे, वो नहीं करे, फार्म हाउस नहीं बना के दिए, खेती नहीं खरीद के दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनका जो ना, इनके पेरेंट्स देखो, वो लोग कुछ पढ़ाने के लिए भी काबिल नहीं थे, और बच्चे कमा करके उनको बिठा के खिला रहे। అందుకని తెలుగులో చెప్తారు, పుణ్యం కొద్ది పురుషుడు దానం కొద్ది పిల్లలు। मतलब जो हमारा कर्म है, चलो जो भी है एक, लेकिन वो माँ इतनी बड़ी अच्छी स्ट्रांग है, मतलब कोई भी चीज़ बेटे का मन में नहीं लेती है। कभी वो बोलते हैं तो फील ना हो इतना तो, लेकिन मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करते। वो बोलती दीदी अगर मैं ये मुरली क्लास या रेगुलर स्पिरिचुअल डिस्कोर्स नहीं की होती तो सचमुच हम बेटे को साथ में जी नहीं सकते थे अभी भी। और उनका जो डिमांड रहता प्रिपरेशन का, मैं आश्चर्य क्या थी, वो माता इतना प्यार से बाबा को याद करके मतलब हमारे प्रिंसिपल्स जो भी है वो फॉलो करती है। उनका मेनू अलग, ये बेटे का मेनू अलग, और वो डायबिटिक है तो उनकी अलग। बनाने में कितनी मेहनत लगती, लेकिन वो प्यार से बनाती है। तो बोलती बाबा साथ में है तो मैं कर पा रही, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। तो एक बात, मैं चिकटपल्ली ब्रांच में थी, तो वहाँ एक माता आती, उनके ना रिलेटिव्स को इनके हाथ का खाना बहुत पसंद। हम लोगों के जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करते, वो फैमिली, वो उनके सारे रिलेटिव्स यूएस रहते। ये कब की बात है, 99 या 2001 ऐसे के समय की बात है। तो वो लोग अचानक बोले कि मौसी हम आ रहे हैं, आप ये चीज़ें बना देना। तो वो चिकटपल्ली ब्रांच में बहुत हेल्पिंग हैंड थे, हमारे जो भी कार्यक्रम होते वो तभी घर गए, और मतलब घर में वो सब्जियां आदि आदि है। तो फिर उन्होंने एक सेकंड सोची, बाबा मैं तो बना नहीं सकती इतना जल्दी। 10 बजे घर पहुंची और वो लोग 1 बजे आते, बोले 2-3 घंटे में इतना सारा वैरायटी, अच्छा सा मेनू दिए। तो फिर काफ़ी लोगों को देखते हो यूएस में, जहाँ एनआरएस होते वो आते, तो इंडिया में जो भी रहते जितना दिन रहते इनका नहीं छोड़ करके, उनका पेंडिंग वर्क्स ये वो रहता है ना, खाना पीना जो भी है। तो फिर उन्होंने कहा, वो आके मेरे को सुनाई, दीदी मैं बाबा को याद करी, बाबा आप बनाओ, ये हाथ आपके हैं। जिलेबी तक वो मेनू में क्या क्या है, एक चीज़ मुझे याद है, पकौड़ा और जिलेबी, 2 चीज़ मुझे याद है, बाकी मेरे को नहीं याद है। 6-7 वैरायटी उन लोगों ने बताया, जिलेबी तक बनाए। जिलेबी थोड़ा मुश्किल होता है ना बनाना, वो भी चीज़ बना के रखे, और वो लोग आने तक वो लोग इतनी आश्चर्यकारी, कैसे बना इतने कम टाइम में। वो लोग सोचे जाने तक अधूरा अधूरा होगा, फिर हम लोग कुछ एंटरटेन करेंगे, वो पूरा बनने तक, आने तक बन गए और टेबल पर भी रख दिए। मतलब मैजिक क्या होता है, हम अपने मन से कोई चीज़ को यस या नो, कभी कोई चीज़ जीवन में सामने आते हैं, कभी भी ना नहीं कहना। ओके आई एम कंफर्टेबल टू डू, कोशिश तो करो, पहले ना क्यों बोलते, वो तकदीर को लकीर ही लग जाता है। और पहले हम वो चीज़ के लिए बने हुए रहते, मेरे को ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मेरे को यही आता है, यही आता है, तो वही तटस्थ हो जाता है। और कभी भी कोई हेल्थ इश्यू है तो ये मेरे को आ गया, वो फीलिंग में नहीं आना, कभी भी उसकी फीलिंग में नहीं आना। वो मैजिक बॉक्स में नेगेटिव डालना, वो 60 साल रहने वाला 6 दिन में मर जाते हैं, वो 6 साल रहने वाला ही समझ लो। और डॉक्टर्स बोलते 6 साल तक जिएंगे, लेकिन वो टेंशन इतना लेते, 6 साल ही मेरा आयु है, 6 महीने में ही चले जाते मन में लिए। तो कुछ
कुछ भी बातें आती है तो भगवान ने हम सबको एक बिगेस्ट ट्रेजर दिया, थॉट्स। हमारी बड़ी दीदी, यहाँ के जो डायरेक्टर दीदी है कुलदीप दीदी, वो एक कहानी सुनाते हैं। ये सच में भी है, वो रियल हुआ नहीं हुआ वो कहानी है, परंतु ये भक्ति में भी भक्त मार्कंडेय की कहानी में सुनाते। सुना है भक्त मार्कंडेय? हाँ, वो उनके पेरेंट्स ऋषि थे, तो उन लोगों को बच्चे नहीं होते, तो भगवान से बहुत प्रार्थना करते तो भक्त मार्कंडेय का जन्म होता। और जन्म होते ही जब वो एस्ट्रोलॉजी देखते थे ना, पहले ज़माने में ज्योतिष देखते, तो फिर उनका आयु 8 साल तक ही रहता है, 8 या 6 उनकी आयु उतनी ही है। तो माता पिता बड़े दुखी होते कि बहुत समय के बाद बच्चा हुआ और वो भी अल्पायु, और वो शिव के भक्त थे। तो फिर उनको बेटे को कहते कि शिव एक ही है तो तुमको जो भी करना। वो लोग भी शिव पर बहुत विश्वास करते। और जिस दिन उनका आयु पूरा होने का दिन आता है और वो जा कर के शिव को आलिंगन करता है, जो शिवलिंग होती है मंदिर में। फिर धर्मराज आता और उनको कुछ नहीं कर पाता है और वो फिर उनकी आयु लंबी हो जाए। मैं शॉर्ट में सुना है, उसका लंबा शास्त्रों में वर्णन है उसका। एक मैं बचपन में उसका पिक्चर भी देखे, भक्त मार्कंड कैसे उनका जन्म होता, वो शिव जी के कैसे प्रार्थना करता था और शिव जी ने उनकी आयु कैसे बढ़ाया और यम धर्मराज की सजा से कैसे छुड़ाया जी। तो ये शास्त्रों में है। और एक विलेज में ऐसा ही एक व्यक्ति था, वो जैसे तेलुगु ईयर होता है उगादि, जिसमें पांचांग श्रवण होता है। उगादि में सब लोग साल में और व्यक्तिगत रूप में भी अपना भविष्यवाणी करते हैं, सुनते हैं। तो उस प्रकार वो व्यक्ति को भी बहुत दिल होता है कि बाजू वाली गांव में वो बहुत अच्छा सुनाता है, राइट बातें सुनाता है। वो उस दिन निकलता उगादि के दिन कि अपना पंचांग श्रवण सुनने, अपना भविष्य पता करने। तो निकलता है, पहुँचते पहुँचते थोड़ा अंधेरा हो जाता। तभी वो वाइंड अप कर रहा होता, लेकिन वो हाथ दिखाता है, उसके हाथ की हस्तरेखाएं देखता है। देख करके बोलता है कि कल आओ। तो वो पहले से लंबे दूसरी गांव से आए, थका हुआ रहता, नाराज हो जाता। ये बोलता है नहीं, तुम्हारी रेखाएं थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, रोशनी चाहिए, कल आओ। फिर वो चलो थोड़ा मूड ऑफ होता है, लेकिन चलते चलते थोड़ा अभी ये गांव में कहाँ रहना। फिर वो एक पेड़ के नीचे पहुंचते ही बारिश होती है बहुत तेज़ी से, और बीच बीच में बिजली चमकती है। तो वो बिजली जब चमकती है तो उनको वो पेड़ के नीचे से दूर एक पुराना एक कोठरी जैसा दिखता है। तो वो जब वो बिजली चमकती है, वहाँ पत्ते वत्ते और अंदर से एक शिवलिंग दिखाई देता है उनको। तो सोचता है अभी रात भर तो मुझे कैसे भी बिताना है, तो वहाँ पर क्यों ना पहुँचो, शिव जी का लिंग दिखा। तो जैसे ही वो पेड़ से कोठरी की ओर, जो उन्होंने पुराना ऐसा थोड़ा टूटा फूटा देखा, तो उस तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो 2-4 कदम आगे किया, पेड़ के ऊपर बिजली गिरती है। वो पीछे देखता है, चलो आगे जाता है, वो कोठरी के पास पहुंच जाता है। और पहुंच करके शिवलिंग के ऊपर जो भी पत्ते वत्ते गिरे हुए थे वो साफ करने लगता है। और वो इस तरफ साफ करके उस तरफ पहुंचता है, तो इधर का छत नीचे गिर जाता है। और वहाँ वो देखता है तो नीचे सांप के ऊपर वो छत गिरा है। फिर वो रात भर वो पूरा मंदिर को साफ करके फिर सोचता है, अरे कितना अच्छा प्यारा शिव का स्थान है और लोग ध्यान नहीं दिए तो ऐसा हो गया। मैं ना इसको ठीक ठाक, थोड़ा मेरा जितना क्षमता है उसको ठीक ठाक करके पूजा योग्य बनाऊंगा। ऐसा सोच के रात भर अच्छा सा शिव के नाम जपते जपते रात पूरा हो जाता है। फिर सवेरे वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाता है, ज्योतिषी के पास। तो देखता है, शॉक हो जाता है। पहले तुम जो कल आए तुम, तो इनको बड़ा गुस्सा आता। कल तो हाथ दिखाया तो भी सही नहीं बताया, और आज मैं आया तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे। तो उनको गुस्सा आकर के, कल आए तो आप ऐसा बोले और आज ऐसा बोल रहे हो तुम। तो वो ज्योतिषी उनको पूछता है कि
यहाँ से तुम जैसे गए हो क्या क्या हुआ पूरा मुझे एज इट इज बताओ। ये सारी चीजें जो आपको सुनाए वो सारा ज्योतिषी को वो बता देता है। तब वो ज्योतिषी कहता है कि मैं कल आपको आज आने के लिए क्यों कहा कि तुम्हारी आयु कल शाम तक ही था, कोई भी हालत में तुम जीने का मार्जिन ही नहीं। अगर मैं वो बात तुम्हें सुनाऊं तो तुम इधर ही ना हार्ट अटैक आके मर जाए, इसलिए मैं कल तुमको कल आने के लिए बोला। और जैसे तुम पेड़ के नीचे था तो तुम्हारी मृत्यु बिजली से था, लेकिन वो तुम शिव को, इसलिए शिव को क्या बोलते हैं, हर हर हरने वाला, पाप हरने वाला। तो तुम्हारा पाप हर गया और तुम बिजली से बच गए। बच के आगे पहुंचा तो वो छत तुम्हारे ऊपर गिरना था और सांप भी तुम्हें काटने आया और तुम उस तरफ हट गया और उस छत सांप के ऊपर गिरा। और तुम रात भर जो शिव का नाम जपते रहे और तुम्हारा जो आयु पूरा होने की ग्रहचारी थी वो टल गया और तुम आज तुम मेरे सामने आए। तो तुम जितनी मतलब एक शुभ संकल्प किया कि मैं शिव जी की प्रार्थना करने पुण्य काम करूंगा, तो वो तुम्हारी आयु प्लस हो गई। तो हमारे संकल्पों से आयु बढ़ता भी है घटता भी है। मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में आपको सुनाई थी ना, फार्मेसी पूरा करके हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल बना है माउंट आबू में, वहाँ पर थी। वहाँ एक ऑन्कोलॉजिस्ट है अकोला के, वो डॉक्टर का उनका क्लिनिक था अकोला में, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। डॉक्टर प्रेमा संता वो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, फॉरेन में प्रैक्टिस किए, उसके बाद ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा है तो फिर अकोला में भी एक खोला, फिर बाद में फ्रीक्वेंटली ग्लोबल हॉस्पिटल जो माउंट आबू में बना वहाँ पर भी आते थे। उन्होंने उनके जीवन में जो देखा है कैंसर पेशेंट का, अकोला में ना मतलब महाराष्ट्र में 2-4 नाम कॉमन होते हैं, जैसे यहाँ पर श्रीदेवी लक्ष्मी कॉमन होता है ना आंध्रा में, तो वैसे वहाँ पर मनीषा और 2-4 नाम बताया। कोई एक ही नाम के 2 पेशेंट थे, तो एक आए, उनको भी टेस्ट लिखाया गया, दूसरे को भी टेस्ट। एक पेशेंट थी ऑलरेडी कैंसर पेशेंट, उसका रिव्यू टेस्ट होता है ना आफ्टर मेडिकेशन, वो रिव्यू था, और एक का फर्स्ट टाइम था। रिपोर्ट्स क्या हुए, दोनों का नाम एक एज एक, तो बदली हो गए। जिसको जो रिव्यू करने वाली थी मतलब रिव्यू के लिए आए, उसमें और कैंसर पार्टिकल्स थे, लेकिन वो जो नया पेशेंट था उनका नो कैंसर था, माइनस था। तो वो रिपोर्ट्स इनको मिला कि उन्होंने बताया कि तुम्हारा अभी ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते हैं, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम कैंसर सेल्स। तो बड़ी खुशी से चली गई। और जो न्यू पेशेंट था उनका रिपोर्ट्स अदली बदली हो गए ना, तो माइल्ड कैंसर सेल्स है तुम्हारे बॉडी में, वो उनको बता दिया। तो अभी ट्रीटमेंट की जितना नहीं है, लेकिन तुमको कैंसर है। फिर चले गए घर, 1 वीक या 10 डेज या 1 मंथ के बाद फिर बुलाए थे। तब जब देखा तो वो पेशेंट का सरनेम अलग था रिपोर्ट में। वो लोग भी ध्यान नहीं दिए, ये लोग भी ध्यान नहीं दिए। तो जो पेशेंट को कैंसर पार्टिकल स्टिल रिव्यू के लिए था, उनका जब कराया तो एकदम उनके शरीर में कैंसर नहीं निकला, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने उनको कहा कि नाउ यू आर फ्री फ्रॉम कैंसर पार्टिकल्स, तो वो उस बात को स्वीकार किया और शरीर में जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो। और जिनको नहीं था उन्होंने क्या स्वीकार किया मन में, हाँ मेरे शरीर में अभी कैंसर। फिर जब चेक कराया तो सचमुच आ गया, था नहीं, फिर चेकअप कराया तो निकला। होता है, हम बीमारियों को अपने शरीर में आह्वान नहीं करना। कईयों को तो साइकोलॉजी होती है, मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, वो ही जाएगा। क्यों आह्वान करते भाई, अपने मन को मैजिक करो ना, दुरुपयोग क्यों करते हैं? मन भगवान अच्छे काम संकल्प सोचने के लिए।
और स्टफ क्या मिलता है मन को, हम पैसा सवेरे उठते ही न्यूज़ ऐसा देखते हैं, या आपस में बातें ऐसे करते हैं, या रात को ऐसे ऐसे चीज़ें मतलब देखते हुए सो जाते हैं, तो मन को क्या स्टफ मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? या जीवन में आप जो मिरेकल्स चाहते हैं वो स्टफ मिलता है, जो नहीं चाहते हैं वो, और वही मन को देते हो तो फिर आउटपुट क्या निकलेगा? तो अभी से क्या करेंगे? एक शरीर का सुनाया, मतलब जो विचार से हम स्वीकार करते हैं। कई लोगों को रहता, पेरेंट्स को डायबिटिक है तो मेरे को डायबिटिक होगा, पेरेंट्स को डायबिटिक, वो होता ही नहीं है, आह्वान कर करके ले आते। और कई होते मैं बोलते हैं ना, माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, तकदीर नहीं लिख सकते हैं, है ना। कई माता पिता, देखो हम करीमनगर में एक परिवार को देखे, सोने में तोल के बेटी को ससुराल भेजा, और वो इतनी दुखी हो गई कि आखिर सुइसाइड कर ले बेचारे। और कई इतने गरीब हमने देखा, और वो इतने खुश है ऊंचे घर में आकर के, मतलब सुखी परिवार, अच्छा परिवार। मतलब हम अपने जीवन में ये एक अंडरलाइन करना, पैसा ही सब कुछ, हमारा विचार हमारा जीवन का नींव है। परिस्थितियां आती, जैसे मैंने बताया सुइसाइड के, कभी विचार भी नहीं आने देना, कुछ भी बातें हो, भगवान ने अगर समस्या दिया तो समाधान भी मिलता है। समाधान के बिना समस्या होती ही नहीं है। समाधान मिलने तक धीरज रखना होता है, इसलिए बोलते हैं ना, धीरज का फल। और जो आजकल फास्ट इंटरनेट भी 2 मिनट अगर छूट जाते तो भी पेशेंस नहीं रहता, ब्राउज करते तो भी पेशेंस। अब पहले जमाने में तो वो भी नहीं था, तो भी कितनी शांति से कहाँ कहाँ जाकर के क्या क्या काम नहीं करते थे, क्या क्या मंदिर ऐसे जो बनाए हैं जो विदाउट साइंस, कितने मिरेकल्स है। अपने भारत के इतिहास पढ़ने जाओ तो कितने अद्भुत थे। और आज इतनी सुविधाएं, इतनी सुविधा है तो भी दुखी ही रहते। सुविधाएं किस लिए दी? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए। लेकिन सुख दुख शरीर को अगर डनलप की गद्दी पर भी सुलाओ, या 10,000 के मैट्रेस पर भी सो जाओ, या 1,00,000 के मैट्रेस भी खरीदो, अगर नींद नहीं आए तो क्या मतलब है? वही किस लिए, क्या स्टफ देते हैं हम मन को? आशावादी ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड जरूर रहना। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के बिना सोसाइटी ही नहीं बनता है। मतलब मिस्ड लिंक नहीं करना, अपने जीवन में शांति सुख प्रेम आनंद का वो किस्सा ही छोड़ दो, ऐसा नहीं। आप सुविधाएं प्राप्त करो, भगवान भी मना नहीं। और भगवान जो दुनिया बनाते उसमें जो सुविधाएं है ना, वो इंसान, अभी ये मनुष्य अपने दिमाग से कर रहे हैं ना। नेचर, अगर समझ लो आप धूप काल में कितना भी कूलर एसी लगा वो, और एक बारिश से क्या होता है, सारा मौसम, हाँ, आपका 100 एसी भी काम में नहीं आते। तो भगवान की जो सृष्टि है उसमें क्रिएशन 5 एलिमेंट्स जो है वो इतना सुखदायी होते हैं। पहाड़ों को किसी ने रोप दिया क्या? आजकल इधर उधर घूमने जाते हैं ना, वो कोई मनुष्य बना सकते इसे? और जो मनुष्य का मन सुंदर रहता है उस समय की प्रकृति हेवन, इसमें शरीर इतना स्वस्थ रहता है। आप मतलब ब्यूटी पार्लर जाकर के ये वो कुछ भी करो, उसकी सुंदरता के सामने देवताओं की कितनी नेचुरल ब्यूटी होती है, इतनी सुंदर होता है शरीर भी, इतना स्वस्थ होता है, कभी बुढ़ापा ही नहीं होता है। कंचन काया।
अभी तो बेचारों को मतलब क्या कहूँ मैं, हम शमशाबाद में देखे, मतलब इंसान के अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव है, शरीर में ताकत नष्ट हो गए, बच्चे भी पैदा करने की ताकत नहीं है। मेडिटेशन सेंटर में आके वो इतना संकल्प, मतलब भक्ति में जैसे प्रार्थना करते तो शरीर में ताकत ही नहीं, क्योंकि मन में ताकत नहीं है तो शरीर में कहाँ से ताकत आएगा। कोई भी प्रकार की ताकत हो, इतनी इंजेक्शंस, बच्चे, वो पहले तो मैं सोचती थी बच्चों का हॉस्पिटल क्यों है, बच्चे मना स्वस्थ रहते हैं ना। आजकल तो सब चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स कितने बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैं नीलोफर देख करके आश्चर्य खाती थी, और अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उस समय तो मैं जब हैदराबाद में नीलोफर ही फेमस था 96 में, बाद में तो अभी कितना लोटस है, रेनबो है, एक्सेट्रा 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 क्या क्या बने हैं। लेकिन बच्चे अंदर माता पिता को मतलब न्यूट्रिएंट्स दे दे करके वो फिर शरीर कैसे बनता है। और कोई मरते तो इतना दुखी होते, उतना दुखी होते। ब्रह्मा कुमारी इसमें मतलब परमात्मा कहते हैं कोई शरीर भी छोड़ते हैं तो उस आत्मा के लिए शांति और शुभ का संकल्प, क्योंकि आजकल इतने अकाल मृत्यु हो गए, किसी किसी का परिवार तो कितना दुखी हो जाता है, परिवार सड़क पर आ जाता है। और हमारी बड़ी दीदी, मैं देख के ऐसे चिकड़पल्ली में 96 के पहले से शायद हुआ, मैं पहुंचने से पहले ही, वो HMT कंपनी में करता था, वो कंपनी बंद हो गई थी, 3 छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गया। और वो उस तीनों बच्चों में एक थोड़ा बड़ी थी, वो बहुत मतलब रोते हुए आई, दीदी को बोली मेरी मम्मी बहुत रो रही है, वो कैसे कर। तो दीदी बोले उनको बोलो आने के लिए, हमारी यहाँ की जो बड़ी दीदी कुलदीप। फिर उन्होंने मेडिटेशन किया, मतलब सुना, वो बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक समझ में आया भगवान है, बाबा है। तो बाबा को याद किया और उनको इतना अच्छा टच हुआ। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2-3 जगह दीदी ने बताया मार्जिन की कि वहाँ जाओ। उनको पेंशन भी नहीं आ रहा था, जॉब भी नहीं मिला था क्योंकि कंपनी लॉस में थी। और वो गांव में रहे तो गांव वाले तो और बोल बोल के जो रोना बंद होता था फिर वो आके याद दिला के फिर रुलाते थे। डॉक्टर बोले यहाँ रहेगी तो बच्चों को पिता नहीं, अभी माँ भी चली जाएगी। तो उनको ज़बरदस्ती फिर गांव से फिर लेके आए चिकड़पल्ली, रेंट हाउस में था। तो एक बेटी डॉक्टर बनी, 2 बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए थे। उसको ऑटो चढ़ना तक मैं नहीं आता था, ऑटो कैसे चढ़ते वो भी नहीं मालूम था। और हिम्मत बाबा के पास आई, अपने मन में ताकत भरी और फिर बिजनेस शुरू किया। वो बहुत अच्छा क्लिक हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैड्स बना के देते थे। ऐसे कुछ वो बोलती है मैं मेडिटेशन में बैठे, मुझे ये टचिंग हो और मैं ये करना शुरू किया। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे हर एक का, जैसे भागवत में भगवान के साथ की लीलाएं बोलते ना, जो कुरूपीति और कृष्ण ने ऐसे यूँ किया वो सीधा हो गए, झुक करके चलते थे। ऐसे बहुत जो 9 लाख मेंबर्स ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, एक एक का एक भागवत बन जाता। उतना जुड़े हुए अनुभव, हर पल हर घड़ी परमात्मा साथ देता है। अगर कभी कुछ होता भी है, जैसे देखिए दशरथ पुत्र थे श्री राम, और बहुत तपस्या के बाद उनका जन्म हुआ और फिर क्या हुआ, पुत्र वियोग से ही उनका मृत्यु हुआ। जो भगवान का रूप मानते उनके पिता को ही पुत्र वियोग से मृत्यु करेगा, लेकिन वो दुख नहीं है, संसार का कल्याण उसमें समाये। जब तक वो पुत्र वियोग नहीं होगा तब तक रावण तक, और दुष्ट संहार करने के लिए कोई परिस्थितियां बन जाती है, वो हमें वहां तक मतलब मानव कल्याण तक पहुंच जाता है। लेकिन रास्ते में तो कई प्रकार के आपको बुराई करने में सामना नहीं करना पड़ता है, अच्छाई करने के लिए ही। अभी जैसे देख लीजिए, आपको खाना बनाने में मेहनत करनी पड़ती है, आप छोड़ दो वो बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ता। बना हुआ खाना अगर आप 2 दिन नहीं खाए तो क्या होगा, सड़ जाएगा कि नहीं। आप सड़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या अपने आप। अभी ड्रेस बनाने के लिए
कितनी फैक्ट्री, उसमें कितनी धागे, कितने सिस्टम बनाते, फाड़ने के लिए कोई मेहनत होती है क्या? पुराना होता है तो अपने आप फट जाता है ना, फट जाता कि नहीं? तो आपको बिगाड़ने में मेहनत नहीं लगती है, सुधारने में, फिनिश करने में टाइम नहीं लगता, बनाने में मेहनत करने में। तो भगवान स्वर्ग बनाता है, उसमें मेहनत है। कलयुग बनने में मेहनत, वो अपने आप बन जाता है। जैसे खाना ठीक रहता है फिर कई समय के बाद सड़ जाता है ना, तो ये सृष्टि का सिद्धांत है। जो अच्छी चीज होती है वो बिगड़ने के बाद फिर, जैसे पेड़ है, फिर फल निकल, पहले फ्लावर निकलता है, फिर उसके बाद फल निकलता है, उसके बाद वो फल सूख जाता है, सूखने के बाद वो बीज फिर दूसरा फल को, दूसरी पेड़ को जन्म देने का माध्यम बनता। जब तक वो बीज सूखता नहीं है या पेड़ से अलग नहीं होता है, तब तक वो दूसरा पेड़ को जन्म। तो हम अपने मन से गृहस्थ में रहते, सब कुछ संभालते, मन को डिटैच करेंगे, तभी अनेक प्राप्तियों का बीज आप बो सकते हैं और अनेक प्राप्तियों की झाड़ या हरियाली अपने जीवन में ला सकते। सो फर्स्ट, टू गेट टू see the miracles in our life, first we should become dry and detached. हमारा जो भी जिम्मेवारियां है, संबंधी है, वो सब है, वो निभाना ही है। जब तक हम अपने मन से उन चीज़ों को डिटैच नहीं रहेंगे तो आप उसको संभाल नहीं कर पाएंगे। कई बार रियल में भी या ड्रामा में भी दिखाते ना, वो डॉक्टर अनेकों को प्राणदान देते, लेकिन उनकी बेटा ही अगर एक्सीडेंट होके उनके सामने आए तो, बिकॉज वी आर अटैच्ड। डिटैच हो, देन यू कैन हैंडल द सिचुएशन। सो मेडिटेशन इज प्ले योर रोल परफेक्टली एंड बी डिटैच। आज जो एक्सपीरियंस सुना है, वहाँ भाई कर्म योगा कॉन्फ्रेंस बता रहे थे, वो रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन का लॉन्चिंग हुआ ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट उनकी फैक्ट्री में बनते हैदराबाद में, मेदा कंस्ट्रक्शन से, फुल नेम में भूल गए, 6 कंट्रीज में है और कुछ कितने तो फैक्ट्रीज है, 10,000 एम्प्लॉयज है। और आई ऑलवेज बी डिटैच फ्रॉम माई रोल। प्ले योर रोल एंड बी डिटैच। जितना आप डिटैच होंगे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, हैप्पी बन सकते हैं, रिलैक्स्ड बन सकते हैं। तो मिरेकल जीवन में अनुभव करने के लिए हम अपने आप को पहले सशक्त करना बहुत जरूरी। अपने आप को सशक्त करना माना हमारा जो फोकस रहता है ना, क्या खाऊं, क्या घर बनाऊं, क्या प्रॉपर्टी इकट्ठा करो, यही रहता। अपने मन को ठीक करने के लिए 24 घंटे में 1 घंटा देते, 24 आवर्स में आप 23 घंटा चलो, ये बॉडी को रेस्ट के लिए 8 घंटा समझ लीजिए। और आजीविका कंपलसरी शरीर है तो इसका निर्वाह करना जरूरी है, तो 8 घंटा एम्प्लॉयमेंट समझ लो, ऑफिस आवर्स। रिमेनिंग 8 आवर्स कहाँ जा रहा है? जिसमें पूरा शक्ति नष्ट हो जाता है। जरूरी है मोबाइल, नीड है, हर चीज जरूरी है। अभी बहनें हम भी रखते हैं, पर कितना तक और हम कितना तक यूज करते। भगवान भी छोड़ो नहीं बोलते। मेडिटेशन इज नॉट लिविंग, हैंडलिंग। Don't leave the family and role responsibility and routine, but handle. How to handle? Like a lotus. वो कमल का फूल कीचड़ में ही रहेगा, पर कीचड़ में कभी डूबेगा नहीं। आप उसके ऊपर पानी भी डालो, अगर डुबाओ ना तो भी वो आ जाता है, पानी भी उसके ऊपर।
तो प्ले योर रोल परफेक्टली एज ए वाइफ, एज ए डॉटर इन लॉ, एज ए मदर, एज ए फ्रेंड, एज ए सिस्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. For brothers, as a husband, as a father, as a brother, etc. Every role you have to play perfectly. But don't attach it to that role. Then you can see miracles in your life. साक्षी दृष्टि. भगवान कहते तुम अपना कर्म करो, फल मुझ पर छोड़, तो फिर तुम देखेंगे कितना अद्भुत होंगे. पहले हम कामना रख करके कर्म करते हैं, वो नहीं होता है तो अपसेट हो जाता है. और वो होगा जरूर, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन होता है. और आजकल तो जो मोबाइल बनाया है ना, उनका नाम मैं भूल गई, वो मोबाइल यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको मालूम है उसका साइड इफेक्ट्स कितना है. कुछ घंटे, हर चीज़ जरूरी है. अभी देखिए शरीर में जैसे सी विटामिन एग्जाम्पल बता रहे, बहुत अच्छा इम्यूनिटी को बढ़ाता है. ठीक है, सी विटामिन खाएंगे तो रोग निरोधक शक्ति, मतलब इम्यूनिटी जो भी रोग आता है उसको सामना करने की बढ़ जाता. अगर वही सी विटामिन टू मच लेते हैं तो बोन्स टूट जाते, स्कर भी बोलते, वो बीमारी आ जाती. अभी सोया प्रोटीन अच्छा है, टू मच लेंगे तो ऐसा गैस बढ़ेगा, हार्ट अटैक आया लगता है, होता है वो गैस. कभी ब्रेन को भी वो गैस चढ़ जाता है. मतलब कोई भी चीज जितना है उतना लेना अच्छा है. रिलेशंस में भी हर रोल बैलेंस्ड, एज ए वाइफ, एज ए इंडिविजुअल. कई लोग तो अपना कुछ नहीं देखते, फिर बाद में जीवन भर बोलते रहेंगे मैंने तो 40 साल अपना कुछ देख. मना कौन किया आपको? अपने आप को देखना नहीं बोल के कोई मना करते है क्या? अपना भी देखो. आप खुद अच्छे रहेंगे तभी तो आप अपने परिवार को अच्छा चला सकेंगे ना. और महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है, वो अपना ध्यान रखते नहीं है. अब शरीर जब बिगड़ जाता है तो बोलते मैंने अपना ध्यान रखा नहीं है. रखना चाहिए ना. अपना स्वास्थ्य अच्छा हो तभी 10 लोगों को भी खिला सकते हैं अपन. तो आज जो हमारा मिरेकल बॉक्स है, मन है, मन को भगवत गीता में कहा गया कि मन मना भव, तन मना भव, सेल बना भव, अंजले भगवंतुडु, टेक्नोलॉजी ना भव. भगवान ने जो भगवत गीता में सुनाया, क्या सुनाया? मन मना भव, मैजिक बॉक्स मन. तो वो मुझ में लगाओ, यू कैन सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ. उसके लिए पैसा लगता है, समय लगता है, अटेंशन चाहिए, बस ध्यान, मेडिटेशन. ध्यान नहीं है तो फिर मन आपको जो मंजिल चढ़ाने वाले वही गिराएगा. जैसे घोड़ा, लगाम आपके हाथ में है तो मंजिल पहुंचाता है, अगर लगाम छूट गया तो गिरा देता है. घोड़ा गिराता कि नहीं गिराता अगर लगाम हाथ में नहीं है तो मन घोड़ा है. आप इसका लगाम अपने हाथ में रखो, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, तो आपको अच्छी तरह से मंजिल पहुंचाएगा. जो आप जीवन में करना चाहते हो वो कर पाएंगे. अगर वो आपने सोचने का लगाम ही छोड़ दिए, कोई कुछ कमेंट करते हैं तो वो मन में बैठ गया, मूड ऑफ, ड्राइविंग करने के लिए बैठ गया और वो सब कुछ रेडी था, किसने एक कमेंट किया, बस मूड ऑफ, और अपना काम नहीं, मुझे अब नहीं जाना है, मेरा मन ठीक नहीं है. लगाम किसके हाथ में दिया? अपने मन का लगाम किसके हाथ में दिया? चलो एक को दिया क्या? कभी भाई बोलेगा, कभी बहन बोलेगी, कभी फ्रेंड बोलेगा, कभी भाई बोलेगा, कभी पिताजी बोलेगा, कभी मोहल्ला चलते लोग बोलेंगे. तो सबके हाथ में आपका मन का, तो फिर मैजिक होगा लाइफ में. तो मेडिटेशन माना हमारा जो मन की धारा है, विचार, उसको हम जो करना चाहते हैं उससे कनेक्ट करना. और कोई भी काम अच्छा जो रूटीन होता है ना, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है. आप सोच रहे हैं माना उसमें
अयथार्थ है। वो अयथार्थ अगर वेस्ट है तो उसका नतीजा थोड़ा कम होता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसका नतीजा झेलना किसको है फिर आउटपुट। तो आज से इस मैजिक बॉक्स को अच्छा रखना। अगर आपको रोज़ मेडिटेशन सेंटर में आना नहीं होता है तो आपको जो अच्छा लगता है, आजकल आप बोले ना आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सॉन्ग्स रखो, तेलुगु चाहिए तो तेलुगु आएगा, हिंदी है तो हिंदी, खाना बनाते या म्यूज़िक रखो या ओम ध्वनि से करो। लेकिन फर्स्ट डे का जो बिगिनिंग है बिफोर 8 o'clock, 2 to 5 is the best time, otherwise 5 to 8 is also okay। तो अच्छा प्योर थॉट्स के लिए मिनिमम 10 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट आप मेडिटेशन करके दिनचर्या शुरू करो। आप ओम चैंटिंग करो या अच्छे गीत सुनो या म्यूज़िक लगाओ, होता है तो सत्संग में आ जाओ, आश्रम में यहाँ पर डेली होते हैं। लेकिन और डे का एंडिंग सोने से पहले कंपल्सरी आप ये, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑप्शन है, आप कंपल्सरी खाते हैं ना, भले फ्रूट्स खाओ स्प्राउट्स खाओ जो भी है, या लेमन जूस लो, जो भी है लेते हैं ना, लेते कि नहीं लेते। तो उस प्रकार मन का जो भोजन है मेडिटेशन, वो दिन में मिनिमम 2 टाइम्स, अगर एवरी आवर 1 मिनट करो तो बहुत अच्छा। चेक एंड चेंज, अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो चेक किया, उसको चेंज कर लिया। करेंगे आज से तो मन को मैजिक बॉक्स बनाएंगे। तो फिर आप अपना अनुभव सुनाना, क्योंकि यहाँ संडे टॉक शुरू होने के बाद ही एक भाई आए, मैं उसका नाम पूछी भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा वो ओल्ड सिटी से आते हैं यहाँ पर, शायद अभी भी होंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा उनका चेहरा, पर मैं 2012 से जब यहाँ पर थी, 13 या 14 कोई भी साल मुझे याद नहीं, पर उन्होंने सुनाया, दीदी मेरा हैसियत नहीं था, रोल्स रेनॉल्ट कुछ कार का कंपनी बताया, हाँ शायद, हाँ, लेकिन मैंने खरीद लिया दीदी, बाबा कमाल के मतलब उसने संकल्प किया वो कार उनको खरीदना है। कौन से ब्रांड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन अच्छा बढ़िया कार था, मेरे को करेक्ट याद नहीं है वही था या कुछ और था, पर महंगा कार, और मैंने कुछ खर्च नहीं किया, और वो उनके पास मेरा नंबर भी नहीं है, लेकिन वो कंपनी वाला मुझे फ़ोन किया, और उस समय पर इंस्टॉलमेंट में वो मिलता है, आप इतना एवरी ईयर करो और वो हो जाए, कुछ तो बोला उन्होंने, ना मन ना सपना। लेकिन मैं जब भी वो गाड़ी देखती थी मैं अपने जीवन में खरीदना ऐसा सोचता था, और उसका क्लियर भी हो गया और मैं उसका फुल मालिक भी बन गया दीदी बोल के सुना। यहाँ पर ही संडे टॉक में आते, तो मतलब जीवन में जॉब, स्वास्थ्य, घर, खुशहाल परिवार, ये हम ऊपर रख सकते हैं। मतलब जैसे पहले ज़माने में कोई सिक्योर का फील करते थे कि घर में हस्बैंड और बच्चे साथ हो, बैंक बैलेंस हो, रहने का एक ठिकाना हो, गाड़ी हो, है ना। तो पहले ज़माने तो बैंक तो था नहीं, किसी का अकाउंट्स था नहीं, और आजकल तो मैंडेटरी हो गया, हर एक का बैंक अकाउंट भी है, और गवर्नमेंट ने भी कैशलेस ट्रांसफर्स प्रेफर करती है, सबका है। पहले आपके पेरेंट्स या आप छोटे थे तो इतनी प्राप्तियां नहीं थे, अभी सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है उस समय कुछ नहीं था तो भी लोग खुश रहते थे। कहाँ ये सब सुविधाएं थे, कैसे छोटे छोटे घर होते थे, उनके कमरा कितना छोटा होता, अटैच्ड बाथरूम तो सोचो ही नहीं, बारिश में, और पानी के नल भी घर में नहीं होते थे, पानी लेने के लिए कितना दूर जाते थे, हाँ बोरिंग मारते थे, तालाब पर जा कर के ले आते थे, है ना। अभी सब कुछ है, लेकिन तो खुश रहेंगे, पक्का, चलो खुश रहना, हाँ आबाद रहना। तो मेडिटेशन बहुत सहज है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी विचारधारा को चेक एंड चेंज, दैट इज द मेडिटेशन। विचार में जैसे खाना खाते हैं तो अगर पत्थर आता है तो खाएंगे, घास आता है तो खाएंगे,
से विचारों में भी अगर नेगेटिव है, वेस्ट है, चेक एंड इमीडिएटली स्टॉप दैट थॉट इमीडिएटली। आप स्पीड जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आया तो स्लो करेंगे कि नहीं? तो एवरी टाइम जस्ट अगर गुस्सा आए बच्चों तो तुरंत नहीं करना है, चेक एंड चेंज। वो चेक करने का फुर्सत नहीं है तो उसका परिणाम, उसके बाद जो नतीजा होता है उसमें जीवन भर उसके पीछे कर लटकते रहो, लेकिन सॉल्व होता नहीं है। 1 मिनट का गुस्सा, जीवन भर का सजा। वो चाहिए ऐसा? नहीं ना? ठीक। तो प्रायोरिटी रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस, प्रायोरिटी नहीं है, अभी क्या बताया? नीड है। ठीक है, तो अभी कुछ पल हम बैठेंगे, सीधा बैठिए। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, रिलैक्स। एंड आज आपके जीवन की जो परिस्थिति है, आप जिसको समाप्त करना चाहते हो, परिस्थिति कोई व्यक्ति से हो या शरीर की है, जो भी आपके जीवन की परिस्थिति आपके मन में ले आओ और आप उस परिस्थिति को, अगर कोई व्यक्ति से तो उस व्यक्ति को सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा, परमात्मा को अपने मन में बुलाओ कि निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप उस परिस्थिति को संपूर्ण रूप से परमात्मा शिव, पाप हरने वाले हर हर महादेव, आपके दिल की हर बात सुना दो। जो परिस्थिति आपके सामने आए, दिल से शिव बाबा को उस बात को सौंप दो। इतना शिव बाबा के सामने उस बात को रखो, आपके मन में उसका अंश भी न रहे। एकदम अपना मन खाली करो और शिव बाबा को दिल से सुनाओ। और वो परिस्थिति रूपी फाइल भगवान के पास पहुंच गया है। अब अपने मन को हल्का फील करो। एकदम लाइट महसूस करो कि उस परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर नहीं है। मेरा मन एक कमल फूल समान है। शिव बाबा, आप मेरा साथी हो। आपको मैं अपना जीवन साथी बनाकर हर कर्म में, हर कार्य में आगे बढ़ते रहो। बाबा, आप मेरे जीवन में बहुत अद्भुत स्वस्थ शरीर दिया है। मैं दिल से मेरे पेरेंट्स को शुक्रिया करती हूँ। मेरा ईच एंड एवरी ऑर्गन, मेरे आईज आर परफेक्ट, ears, each and every organ of this body is perfect. Thank God. I, the soul, playing my role with this body. I love my body. I love my role.
कितना प्यारा सुंदर परिवार है मेरा। मैं अपने जीवन में एकदम खुश हूं। संपूर्ण संतृप्त हूं। ये शरीर है काम करने के लिए। मैं कर्मयोगी बनकर खुशी खुशी से मैं अपना पाठ बजाऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। बट एक एसेंस याद रखना, मैजिक बॉक्स रखना साथ में। कैसा, ठीक ठाक या सड़ा हुआ? क्या?